morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard maths, class 10th standard maths. My target is to finish off this 9th standard maths as well as 10th standard maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for basic maths also. Now this basic maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views. In the topic triangles class 9, exercise 7.2, let us solve the next example number 4, 5 and 6. Children, all these examples are very important from an examination point of view. And today I will tell you the simple techniques to solve the problem. See, I will be saying that the key to solution of any problem lies in proper reading of the question. अगर आपको ज्योमेट्री इजी रूप में करना है तो सबसे बड़ा पूंजी जो है आपके पास वो है आप कैसे पढ़ते हो। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया तो आपका 50% प्रॉब्लम खत्म हो गया। उदाहरण के रूप में देखिए, ट्रायंगल ABC is a triangle in which altitudes B and C to AC and AB are equal. तो यहाँ जिस बच्चे ने इस शब्द को पढ़ा altitude, जैसे ही आप इस शब्द को पढ़ोगे तो पहला हिंट आपके दिमाग में आ जाता है कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा हिंट आपको जो दिया है कि ये इक्वल है। दूसरा हिंट आपको क्या दिया जा रहा है कि इक्वल है। और तीसरी बात पूछी क्या आपसे कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF आइसोसेलेस है, ये आपको प्रूव करना है। और AB इक्वल टू AC या AB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको प्रूव करना है। तो देखिए मैं किस तरह से आई विल राइट द लास्ट स्टेप फर्स्ट, सारा क्लूज को इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हाउ आई डू इट, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि थोड़ा ध्यान से लिखिए मत, ध्यान से पहले इसको देखो, समझो और फिर करने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ, मुझे प्रूव क्या करना है
प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने उसको लिख लिया और मैं उस ट्रायंगल को ढूंढूंगा। कहां पर है वो ट्रायंगल AB? सर यहां पर है ट्रायंगल ABE। दूसरा ट्रायंगल कहां पर है भाई? ACF। चलो पहला काम मैंने सही से कर लिया कि ट्रायंगल का पता मैंने लगाया। अब थोड़ा देखते हैं कि हमको क्या बताया है। सर अल्टीट्यूड्स के बारे में बताया है। तो अल्टीट्यूड्स के बारे में मैंने बताया है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर अल्टीट्यूड है बच्चों तो ट्रायंगल ABE के अंदर ये 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर भी एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री होगा? ACF ट्रायंगल के अंदर ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां नोट कर लिया बच्चों। क्या नोट किया? व्हाट इज इट? एंगल BEA या AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 1, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CFA इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसने आपको कहा? दिया है। क्या दिया है? C, B एंड C अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है। B एंड C क्या है? B एंड C, CF आर अल्टीट्यूड। BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स। BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स। पहला काम, पहला पॉइंट, B एंड CF आर अल्टीट्यूड्स। देखो कितना ध्यान से और कितने सावधानी पूर्वक मैं उसको कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि BE एंड C ये अल्टीट्यूड भी है और इक्वल भी है। यानी क्या? यानी सर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। कौन से ट्रायंगल के अंदर? ट्रायंगल BEA और CFA के अंदर साइड B किसके बराबर है? साइड CF के बराबर है। साइड CF के बराबर है। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये कौन कह रहा है? फिर से मैं वही जवाब दूंगा, सर गिवन है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। ट्रायंगल ABE के अंदर और ट्रायंगल CFA के अंदर हमने क्या किया? ये साइड इसके बराबर है, यह एंगल बराबर है। सर एक साइड और एक एंगल तो बराबर हो गया, बात बची तीसरा साइड या कुछ तो होना चाहिए। अगर आपने आंखें फाड़ के देखी हो या आंखें खुली रखी हो तो क्लियरली आपको एक बात दिखाई देगा बच्चों कि एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि एंगल BAE इस ट्रायंगल के अंदर है और एंगल CAF उस ट्रायंगल के अंदर है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल BAE। इसको मैंने कहा थर्ड स्टेप। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? देखो कौन सा ट्रायंगल? फिर से ध्यान देना, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF। इसके अंदर ये जो दोनों नीले वाले साइड, इस ट्रायंगल का नीला वाला साइड और इस ट्रायंगल का नीला वाला साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल का पिंक वाला एंगल और इस ट्रायंगल का पिंक वाला एंगल इक्वल है।
और ये येलो कलर का जो एंगल है दोनों में कॉमन है, यानी दो एंगल्स इस ट्रायंगल के और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा रूल यूज किया मैंने, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। बस हो गई बात। और बच्चों एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आगे की बात अपने आप फॉलो होती है। आगे क्या होगा, ये साइड AC और इसका साइड AB इक्वल होगा, इंप्लाइज साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। क्यों भाई, CPCTC। देयरफॉर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल ABC क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, यहां अगर आप ध्यान दोगे, ये उन्होंने ही बताया है, ये उन्होंने दिया है और ये तो दिख रहा है, तो सो सिंपल टू प्रूव इट। अब उससे भी सिंपल ये प्रॉब्लम है, यकीन नहीं आता आपको यकीन दिला देता हूं। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो क्या कह रहा है वो, ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ऑन द बेस BC, उसका बेस क्या है, PC पर है। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। व्हाट ही सेज इज, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर प्लेस्ड on the same base, then you have to prove that angle ABC and angle ACD are equal. See how I use the sentence given in the problem to solve the problem in a very simple way. See here, ABC and DBC are two isosceles triangles. I will use what they are given. See, in triangle ABC, in triangle ABC and triangle DBC, let us see what is given to me. क्या दिया है मुझे, हम देखेंगे। हमको दिया है ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो ये वाला साइड अगर इस साइड के बराबर है तो ये वाले साइड के सामने वाला एंगल यानी ये ACB और इसके सामने वाला एंगल यानी कौन सा होगा, ABC इक्वल होगा, यानी इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। तो देखिए मैं वही लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये उन्होंने दिया है। अगर वो इस बात को दे रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, इसको हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और कारण हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक उसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाले साइड के सामने वाला एंगल और ये वाले साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। कारण क्या है, वही कारण होगा, यानी इसके सामने वाला एंगल है ये और इसके सामने वाला एंगल है ये। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एंगल इन ट्रायंगल क्या होगा यहां पर, DB इज इक्वल टू DC। अगर वैसी बात है बच्चों तो DB के सामने वाला एंगल और DC के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, यानी DBC एंगल इज इक्वल टू DCB एंगल होगा, DCB एंगल होगा। और बार बार I need not have to, every time I need not have to write the same reason. The reason is same. Angles opposite to equal sides are equal. See, very simple children. These two sides are equal, so the angles opposite to this is equal to the angle opposite to this.
These two sides are equal, so angle opposite to this equal to angle opposite to this. Now equation 1 plus equation 2. If I add the two equations, let us see what happens. Suppose if I add angle ABC plus angle DBC, it will be equal to angle ACB plus angle DCB. Then what happens? Let us see. Let us see here what happens. क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं. देखो एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल हो गया और एंगल DBC ये वाला एंगल हो गया और इन दोनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं, if I add these two angles, कौन सा एंगल होगा बच्चों? ये वाला एंगल ABD जो हमको प्रूव करना है. उसी तरह से ACB एंगल इज इक्वल टू DCB एंगल अगर मैं कर दूं तो these two angles इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू ACB. तो यानी so simple children, these two sides are equal, angles opposite to them are equal. These two sides are equal, angle opposite to them are equal. Add the two equations, problem is solved. Add the two equations, problem is solved. Hence proved. Hence proved. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा है बार बार. सर ने क्या किया? सर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों को प्लस करके काम करते हैं. That's all children. Many times children suffer because they don't try to understand the question in the right way. Understand the question in the right way. Don't preoccupy your mind saying that the questions are. Let's see how we can solve the sixth problem. The sixth problem reads, it is an important question. ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. BA is produced 2D such that AD equal to AB. Show that BCD is right angle. See how I solve the problem in a very systematic manner. See, the first sentence is in triangle, or what I do is first let us mark the angles as angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 as shown in figure. As shown in figure. Now I will tell you systematically how to solve it. ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Let me take the steps one by one. ABC is an isosceles triangle. If AB equal to AC, then the angles opposite to this equal sides are always equal. So what I say is, in triangle ABC, a side AB is equal to side AC. It is given. Side AB is equal to side AC is given. So in front of side AB, angle 2 is there. In front of side AC, angle 2 is there. Angle 1 is there. So I can say angle 1 is equal to angle 2. This is my first equation or equation A. And the reason is angles opposite to equal sides. First part is what? Angles opposite to equal sides. Now let us see what is the second part. Second part is BA is produced to D. See, this BA is produced up to D such that AD is equal to AB. See children, AB is already equal to AC, and if AD is equal to AB, then this will be equal to this.
ये इसके बराबर है और अगर ये इसके बराबर है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि AB किसके बराबर है, AB AC के बराबर है और AD AB के बराबर है। AB AC के बराबर है और AD ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। और बच्चों अगर AC इज इक्वल टू AD होगा तो ACD कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल ACD इज आइसोसेलेस। और अगर दो साइड्स इक्वल हो गए बच्चों तो फिर से वही कहानी होगी, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा, यानी क्या होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। यानी क्या होगा, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। कारण क्या है, दूसरा सेम कारण है। व्हाट इज द रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो तो मैंने क्या किया आपको यहां पर, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। कैसे हुआ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर हो गया। अब हम को प्रूव करना है कि एंगल BCD इज राइट एंगल। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल के अंदर आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अभी इसके अंदर हम एक काम करेंगे, एंगल 1 किसके बराबर है बच्चों, एंगल 2 के बराबर है, बराबर है। फिर एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 2 टाइम्स एंगल 2 और एंगल 3। अच्छा यहां पर एक बात हमसे रह गई बच्चों, 4 जो है वो 3 के बराबर है, तो वो भी हम लिख देते हैं यहां पर। देखिए जैसे 1 2 के बराबर है वैसे 4 3 के बराबर है, तो वो लिख देते हैं हम, इंस्टेड ऑफ 4 राइट लिख 3, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब व्हाट इज कॉमन हियर, सर यहां पर तो 2 कॉमन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 290 जा, कितना हो गया 90 डिग्री। बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी क्या हो गया, एंगल BCD इज 90, एंगल BCD इज 90 एस 2 राइट एंगल, ये 90। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है इसको। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, आपको मैं बहुत सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा। ये दो साइड्स अगर इक्वल है बच्चों, ये दो साइड्स अगर इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये अगर इसके बराबर है और ये अगर इसके बराबर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ये दो इक्वेशन तो वही है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल बताना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल बताना है। उतना लिख के छोड़ देना, यह भी लग जाएगा।
थर्ड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 180 बिकॉज सब एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करना है। तो सब मिला के 180 डिग्री होगा। बाद में लास्ट तक में क्या करना है आपको, ये इक्वल टू 2 लिखना है, ये इक्वल टू 3 लिखना है। तो क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180। तो 1 टाइम एंगल 2 प्लस 1 एंगल 3 इज इक्वल टू 90 और hence it will be equal to how much, 90 डिग्री।